اتنا نشہ چل گیا نشہ. پہلے لوگوں کے اندر معلوم ہے کیا تھا؟ طاقت ہوتی تھی. یہ مطلب انہیں نشہ دے دے کر کے نا انہیں نامرد بنا دیا. نشہ، میری بات تھوڑی سی تمہیں لگے گی مگر سچ بتا، نشہ دے دے کر کے ان کی طاقتیں ختم کر دی. پرانے لوگ تھے نا یہ کبڈی کھیلتے تھے، یہ لوگ لکڑی چلاتے تھے، یہ لوگ ہل جوتتے تھے، گاڑی اٹک جائے تو کاندھے سے لگا کے پار کر، یہ لوگ تھے. شدھ گڑ کھاتے تھے، دودھ پیتے تھے، مٹھا پیتے تھے. اور اب میرا کیمیکل پی رہا، سمجھے؟ کولڈ ڈرنک پیتے 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 بیئر تک پہنچ گیا، بیئر پیتے پیتے شراب پہ پہنچ گیا. شراب جو برباد کر کے رکھ دیتی. یہ بتاؤ نبی کی بات غلط ہو سکتی؟ بتاؤ. میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی ایک گھونٹ شراب یا نشے والی چیز پی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پیپ کا ایک گھونٹ پلائے گا. پیو گے؟ ہے ہمت؟ سنو، اعلی حضرت نے بھی لکھا، حضرت اور لوگوں نے بھی لکھا، جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی شرمگاہ سڑ رہی ہو، اس میں خون، پیپ، کچلو مواد جمع ہوگا اور انہیں پیشاب لگتا ہوگا مگر پیشاب نہیں اترے گا. ان کے مثانے، پیٹ تن جائیں گے پیشاب کی وجہ سے، پھول جائیں گے، پریشان چیخ رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، شرمگاہ سڑ رہی ہوگی. اور برابر میں کچھ لوگ ایسے جن کے یہ ناخون اللہ تعالیٰ تانبے کے کر دے گا اور آدھے چہرے سے نصف الوجہ کا لفظ آیا، آدھے چہرے سے ایسے کر کے چیریں گے آدھے سینے تک، کھال نوچیں گے، خراشے ڈالیں گے، چیریں گے اور کیا کریں گے؟ ہائے العطش، ہائے. اس کا مطلب ہم تڑپے جا رہے ہیں، کچھ پلاؤ، کچھ پلاؤ، کچھ پلاؤ، مرے جا رہے ہیں، کچھ پلاؤ. ہائے پیاس، العطش، پیاس، توس، خشکی، سارے معنی. وہ چھیل رہے ہوں گے. میرے نبی بیان کرتے کرتے رو گئے. صحابہ نے پوچھا آقا یہ کون سے نبی کے امتی ہوں گے؟ اس نبی کو کتنی تکلیف ہوگی؟ جب اتنا کہا تو نبی کی سسکیاں بن گئی روتے روتے. صحابہ بولے کوئی غلطی ہوگی تو نہیں کیا؟ نبی تو اور رونا شروع ہو. آقا آپ اتنا رو رہے ہیں تو جس نبی کے امتی ہوں گے ان کو کتنی تکلیف ہوگی؟ اور کیا پتا تھا کہ نبی کی بات ہو رہی؟ میرے نبی رو رو کر کے ہچکیاں بن گئی. صحابہ کہنے لگے آقا معاف کر دو. آقا تمہاری غلطی نہیں. پوچھو گے نہیں وہ کون سے نبی کو امتی؟ ہاں آقا. کہا وہ تمہارے ہی نبی کو امتی، وہ مجھ محمد، میں نبی، میرے ہی امتی ہوں. اب تو صحابہ چپ دم بخود. اب کیا کریں؟ آقا معاف کر دے گا، تمہاری کوئی غلطی نہیں. پوچھو گے نہیں کون لوگ ہوں گے؟ اب نبی رو رہے، صحابہ نہیں پوچھتے. نبی رو رو کر کے بولے اب اللہ کے حکم سے ان کو پیشاب اترے گا. پیشاب ساتھ میں. اب جب پیشاب اترے گا تو پیپ بھی، کچلو، خون، مواد، یہ ساری چیزیں اور جہنم کی کالیاں، یہ ساری چیزیں لپیٹے مارتی ایک گڑھے میں پہنچ جائیں گے. اب میرے نبی نے فرمایا وہ جو ہائے العطش کر رہے ہیں ان لوگوں کو یہ پیپ اور یہ مواد پلایا جائے گا. حدیث ہے، ان لوگوں کو یہ پلایا جائے گا. صحابہ نے پوچھا آقا انہوں نے کون سا جرم کیا ہے، کون سی خطا کی ہے، کون سا گناہ کیا ہے، یہ کون سے گناہگار ہوں گے؟ آقا اتنا بتا دے. تو میرے نبی نے فرمایا یہ میری امت کے وہ گناہگار ہیں جو شراب پیا کرتے تھے، جو شرابی تھے، نشہ کرتے تھے، بیئر پیا کرتے تھے، چرس اور نشہ آور چیز پیا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے. یہ میری امت کے شرابی ہوتے ہیں. میرے آقا رو رو کر کے لیٹ جاتے.
तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता कितनी तकलीफ होती होगी। आका बयान करते करते तुम बियर के नाम पे उस नशा ने मत देना। कितने लोग शादी में इसलिए पीते कि हम नाचेंगे ज्यादा, थकेंगे नहीं, बेहोश हो जाते। अल्लाह के वास्ते कोई काम ऐसा मत करना जिससे नबी नाराज हो जाए। लोग पूरी दुनिया मुसलमानों को इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है, बिगाड़ने के चक्कर में, बिगाड़ने के चक्कर में, और तुम आपस में लड़े जा रहे हो, मरे जा रहे हो। न पिद्दी का शोरवा और मुफ्ती बना पड़ा। ऐसे हालात। मैं एक जगह सुन रहा था, हजरत एक जगह सुन रहा था, तो कुछ लोग अनपढ़ी कुछ कह रहे थे कि मौला कायनात हजरत अली का पहला मकाम है, कुछ कह रहे थे हजरत अबू बकर सिद्दीक का पहला मकाम। यार मैंने कहा या अल्लाह, वो वक्त आ गया जब नबी ने फरमाया था कि ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा, इतना मुश्किल होगा, इतना मुश्किल होगा, इतना मुश्किल जितना कि आग का अंगारा हाथ पर रखना मुश्किल। अब वो वक्त आ गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी और सहाबा को बुरा कहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अहले बैत को बुरा कहते हैं। दोनों जहन्नमी, दोनों जहन्नमी। अहले सुन्नत वल जमात ये है कि सहाबा भी हमारे हैं और अहले बैत अतार भी हमारे हैं। ना तो सहाबा के बारे में हम बुरा सुन सकते हैं, ना अहले बैत अतार के बारे में हम बुरा सुन सकते हैं, इसलिए वो सहाबी बने हैं हमारे नबी को देख करके, और ये अहले बैत अतार हुए हमारे नबी के घराने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, फैजान सहाबा इकराम, फैजान अहले बैत अतार। माशाअल्लाह, तेरा ताल्लुक किससे है? 5वीं क्लास पढ़ने वाला हाई स्कूल वाले का अंदाजा नहीं लगा सकता कि मैथ किसका अच्छा, इंग्लिश किसकी अच्छी। इम्तिहान नहीं ले सकता। सारे उलमाए जमहूर का इस पर इत्तेफाक है। सबसे अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मौला कायनात हजरत अली की औलाद ने भी माना है। तुम हसन से भी ज्यादा ऊंचे हो गए, गौसे पाक से ज्यादा ऊंचे हो गए, गरीब नवाज से ज्यादा ऊंचे, इन लोगों से ज्यादा ऊंचे हो गए। न पिद्दी का शोरवा। ऐसे हालात। अगर किसी भी सहाबी की जर्रा बराबर में गुस्ताखी हो गई, ईमान जाता रहता है, सच्चाई खत्म हो जाता। इसलिए ईमान को बचाना जरूरी। हर तरफ से लोग इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हैं। अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, बीबी को बचाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। एक जगह हजरत मैं मजार शरीफ पे उर्स की तकरीर में गया। हजरत मेरी तकरीर थी, सुन लो थोड़ी देर और। क्या टाइम हो गया शायद सर? 1 बज गया, बस टाइम होने वाला, 1 बज गया। एक जगह उर्स था, हमारी तकरीर थी, हम गए तो हमने सोचा चलो मजार शरीफ पे हाजिरी दे लें। वहां देखें तो ऐसा मुजाबिर गुंडा बैठा था, वो कई अंगूठियां और उल्टे सीधे कपड़े और बाल, और वो ना चिलम में वो भरे हुए नशे वाली चीज, और वो क्या बोलते उसको, चरस बोलते, क्या बोलते भांगूं क्या वो, और वो पीता था और ऐसे करके सुटका मार के फिर धुआं उड़ाता था, कई धुएं, और फिर हर धुएं का हक अली, हक अली, हक अली। जितने गुंडे उसके साथ में तो वो भी कह रहे थे हक अली, हक अली। मैंने कहा तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलील अज़ीम। यार मौला कायनात हजरत अली को जरा देखियो। मैं बताऊं तुम्हें, कुरान शरीफ का 2रा सिपारा, सूरह बकर, आयत मैं पढ़ रहा हूं, मोबाइल में देख लेना, गलत हो तो मुझे बुला लियो। वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। ये आयत के शान नुजूल में हजरत अली का एक छोटा सा वाकया लिखा है। इजाजत हो तो बताऊं? घर जाके देख लियो, कुरान में किसी का भी कुरानो देख लियो। आजकल मोबाइल का दौर है, नौजवानों देख लियो, समझे? अगर उसने शान नुजूल लिखी है तो ये वाकया होगा।
आला हजरत को उसमें मैं अपनी आंख से देख चुका हूं। मोबाइल में निकाल के देखो, इस आयत के शान नुज़ूल में लिखा, हजरत अली खुद फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं पे तालाब हो, क्या हो बोलो, तालाब, और उस तालाब में पानी, और उस पानी में शराब के नशे वाली चीज के चंद कतरे डाल दिए जाएं, कौन कह रहे हैं? मौला कायनात हजरत का चंद कतरे डाल दिए जाएं, अब वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए, कुछ कम गहरे तालाब होते हो जाते जमीन में खुशक, और हजरत अली फरमाते हैं उस जमीन पे घास उग आए, जम आए, घास जमाई। अब हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर लें, मेरी बकरियां खा लें। देख रहे हैं पानी में शराब या नशे वाली चीज के कतरे, पानी जमीन में घास, घास बकरियों के पेट में। हजरत अली फरमाते हैं वो घास मेरी बकरियां खा ले। अब अली कहते हैं अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत अली को बदनाम करते हो, तुम्हें इतना मारा जाएगा इन गुंडों को ना, इधर की पसली इधर कर दी जाएगी और इधर की उधर। मौला कायनात हजरत अली फरमाते हैं देखो तो कितने वास्ते हो गए, शराब या नशे वाली चीज के कतरे पानी में, पानी जमीन में घास, घास बकरियों के पेट में। हजरत अली फरमाते मैं उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। अल्लाह। और तू सुट्टा मार के कह रहा हक अली, हक अली। हजरत अली उससे मुंह फेर रहा है तो उससे राजी हो जाएंगे? तुम्हें धोखे में डाल रखा है, धोखे में डाल रखा। जरा देखो ना इमाम हुसैन पाक आया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ, इमाम हुसैन पाक कितना मैटर था, इतना तो ही था। यजीद का मुतालबा था कि मुझसे बैत कर ले, बच्चे भी बच जाएंगे, खुद ही बच जाएंगे। आज जैसा कोई दलाल होता तो बच बचाया था, लेकिन वो हुसैन थे, दुनिया वालों को दिखा दिया। हुसैन ने कहा अब शरीयत मुस्तफा की जिम्मेदारी मेरे कांधों पर है। हाथ यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? जमीन का झगड़ा था, जायदाद का था। क्या यजीद या यजीद हुसैन के मुकाबले का हो सकता है? माज़अल्लाह। बोलो, हुसैन ने पाक ले यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? दुनिया वालों को दिखा दिया। इसलिए यजीद नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए यजीद ढोल बजाता है, इसलिए यजीद नाजायज लड़कियों को अपने घर में रखता है, इसलिए यजीद शरीयत का खून करता है। हुसैन वो है अपने बच्चे दे सकता है, अपनी जान दे सकता है, अपना माल दे सकता है, मगर ऐसे शराबी जुआरी नशेड़ी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शुहदाए करबला, फैज़ाने असीराने करबला, फैज़ाने मजलूमीने करबला। माशाअल्लाह। दुख उस वक्त हुआ था हजरत जब एक गांव में लोग अपने आप को हुसैनी कहला रहे थे और शराब पी करके ढोल बजा रहे थे। अल्लाह। दुख उस वक्त हुआ था मुझे, अपने आप को वो मुसलमान भी कहला रहे हैं, हुसैनी भी कहला रहे हैं, और शराब पी करके जो ढोल बजा रहे थे। आय हाय, दिल चीर देने वाली बात है। दुख उस वक्त हुआ था। हुसैन पाक ने दुनिया को क्या सबक दिया और हम क्या कर रहे हैं? एक एक चीज मोड़ मोड़ पर तुम्हारे दुश्मन है लोग। मुसलमानों, ईमान वालों, इस्लाम के और मुसलमानों के दुश्मन। लोगों की मदरसों पे कितनी नजरें हैं तुम्हें मालूम नहीं है, मगर हमें गैरों से शिकायत है। अपने अपने बाज गांव में झगड़ा करके ना मस्जिद में ताला डलवा देते हैं, ताला, सिर्फ मेरी नाक नीची ना हो जाए। कितनी मस्जिदें बंद हो गई हैं मालूम है क्यों? ये सिर्फ मेरी सदारत जा रही है, मेरी नाक नीची ना हो जाए। एक गांव में मैं तकरीर करने गया हजरत, उसमें एक गैर मुस्लिम ने ये कहा था कि मुझे वोट दे दोगे ना
अल्लाह बरकत दे, अल्लाह सलामत रखे। मुझे वोट दे दो कि मैं बनवाऊंगा। वोट दे दिए, लोग जीत गए। तो उसमें से 17 मुसलमान ऐसे निकले जो हारे थे ना, वो सोच रहे नाक कट रहे थे, उन्होंने थाने में जाकर रिपोर्ट लगा दी कि साहब इस मस्जिद में विवाद है, झगड़ा, हम नहीं चाहते कि यहाँ मस्जिद बने। ये मुसलमान कह रहे थे, मुसलमान। वो दूसरा खड़े होके बनवा रहा था और ये रुकवा रहे थे 17। मैंने कहा लानत है तुम्हारी जिंदगियों पर, तुम अपने घर को क्यों नहीं रुकवाए? क्या मुंह दिखाओगे तुम हुसैन पाक को? क्या मुंह दिखाओगे नबी को? क्या मुंह दिखाओगे सिद्दीक अकबर को? अल्लाह किस मुंह से जाओगे? कैसे जाओगे? कौन सा मुंह लेकर के जाओगे? कितनी मस्जिदें, कितने मदरसे बंद हो गए हजरत, तुम्हें मालूम है? ऐसे हालात हो चुके। तुमसे बस यही कह करके जाऊंगा, आज तकरीर मत समझ गए, दिल की एक कैफियत जो आई थी वो हालात मैंने तुम्हें बयान कर दी। आपस में लड़ाई झगड़े मत करना, आपस में किसी को तकलीफ मत देना, आपस में यार क्या जिंदगी है वो कुत्तों वाली के, इधर खुर्रा फुर्री उधर खुर्रा फुर्री, ये कोई जिंदगी है क्या? माफ करना, लफ्ज कुत्ता अच्छा नहीं है और मैं इसलिए, मगर क्या करूं? तुम खुद बताओ ये जिंदगी की? यार जिंदगी 4 दिन जी के देख, जिधर से निकलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, बड़ा हो अदब करो, नमाजी हो अदब करो, हाजी हो अदब करो, इमाम साहब हो अदब करो, आलिम साहब हो अदब करो, मदरसे के बच्चे। दुनिया ये कहती है ये हमारी कौम के रहबर बनेंगे, उन्हें पालेंगे। तुम्हारे मदरसे के बच्चे पूरी दिन भर पढ़ते रहे, असर के बाद अगर जाके खेल लिए तो कुछ हाजियों के, कुछ नमाजियों के पेट में दर्द होने लगता। उनके बच्चे जबकि दिन भर मोबाइलों पे, शराबों पे, ज्वारियों और क्या क्या पड़े हुए, मदरसे के बच्चे इतना भी नहीं कर सकते। अरे जो बकरा होता है ना, उसे 24 घंटे बांध कर रखो 2-3 दिन, जब छोड़ो तो वो ज्यादा कूदता नहीं, कूदता है। ऐसे बेचारे ये बच्चे दिन भर, मैं मदरसे में पढ़ा रहा हूं ना बदरुलूम में, तो मुझे मालूम है हजरत हम लोग फजर से उठा दिया करते थे, सभी लोग ऐसे फजर से उठा करके नमाज में भेजा, समझे, फजर से नमाज में भेजा। उसके बाद बच्चे सलाम से आधा घंटा पहले तक सब पढ़ते रहे, सलाम से आधा घंटे की छुट्टी कर दी, चाय नाश्ता कर लो। बच्चों ने अपने चाय नाश्ता करी, सलाम के फौरन बाद घंटी लग गई, 12:30 बजे तक, 12:40 तक घंटी होगी, घंटी लगे, फौरन जोहर की अजान हो गई, चलो नमाज पढ़ो, नमाज के बाद फौरन खाना खा लो। मुश्किल से 1-1.5 घंटा आराम करने, बच्चे जो इंशा बनाने वाले वो इंशा बना रहे हैं, जो बच्चे जिन्हें दोपहर से सबक का पारा सुनाना है, पिछला सुनाना है, वो अपनी वो तैयारी कर रहे हैं। असर तक, अब असर से मगरिब तक छुट्टी कर दी जाती है। असर से मगरिब तक बेचारे कुछ गेंद खेलने चले गए, कुछ आपस में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर खेत में खेल रहे हैं, तो उधर अरे कारी साहब देखियो क्या हो रहा है। मगरिब बाद फिर वो उन्हें हाजिरी देनी है, मगरिब बाद फिर मगरिब से फिर वो ईशा तक पढ़ेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर रात के 10 बजे तक पढ़ेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12 बजे तक भी पढ़ते हैं। 24 घंटे में मुश्किल से 2 घंटे खेल रहे हैं तो पेट में दर्द है तुम्हारे, इनके हाथ पांव बांध दिए जाए। बोलो, हर एक अपने आप को संभालता है, सोचे बदलो, हालात बदलो। हजरत सोच इतनी गलत हो गई है, माफ करना, ये भी बता दूं मैं तुम्हें, सुन लो थोड़ी देर और, अल्लाह ताला सलामत रखे। सुनो, ये सुनने की बात है। ये बताओ, ये कोई मैक चोरी कर ले, पूछो इनसे कितनी कितनी दूर ये भी जाते नाचनी पढ़ने, ये जाते सारे उलमा हजरत, सारे लोग हजरत बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। अगर ये मैक कोई चुरा ले तो उसे इनाम दोगे क्या? बोलो, इनाम दोगे? कोई चोरी कर ले तो? क्या मुसलमान हो गए, क्या रस्में लेके आए। शादी में तुम्हारी जूती नहीं चुरी? अरे बोलो, शादी में जूते नहीं चुरे? तुमने थाने को फोन किया, चोर पकड़ा गया, आ जाओ, चोर को पीटा, बारात टूटी फूटी आएगी और इनाम दे रहे हो चोर को। छोटी साली या साला चुराता, क्या मांगा? वो मांगता 10,000 होता है। दूल्हा मियां कह रहे 8, दोनों में 10-8 10-8। एक चचा मियां है बुजुर्ग, बोले क्या बात है? बोले ऐसे बात है। बोले ऐसा करो, चलो 9 पे निपटाओ, खत्म करो। ये चचा 9 पे निपटा के और बोले देखो ये तो इनका हक है। इन चचा मियां से पूछो तुमने कहां पढ़ा कि चोरों का हक 9,000 है?
قرآن تو یہ کہتا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چورنی کے ہاتھ کاٹو. ارے نبی فرماتے النکاح من سنتی، نبی فرماتے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت اور تم چوروں کو انعام. اور یہ چچا میاں کہہ رہے حق ہے دو. اتنے میں ابا آ گئے. دولہا میاں بولے کیا بات ہے؟ چچا میاں بولے میں نے ایسے سے فیصلہ. بولے نہیں کوئی فیصلہ نہیں، آج کوئی کچھ نہیں، میرے بیٹے کی خوشی کا دن ہے، 10,000 نکال کے دیے، 1 روپیہ کم نہیں، بیٹے کی خوشی. چلو ٹھیک ہے، سن لو یہ بات، ٹھیک ہے. ایک ہی شادی، دلہن کو لیا، کار میں بیٹھے، بچوں نے کار گھیر لی، لاؤ. پھر تم نے فون کیا کہ اگروادیوں نے کار گھیر لی، آ جاؤ. پولیس کو تھا نہیں، پھر یہی جھگڑا، 8-10 کا جھگڑا، پھر یہی. دولہا میاں کے ابا آگے بولے نہیں 1 روپیہ بھی کم نہیں، پورے. چلو ٹھیک ہے. اب تیسرا آپشن سنو. اب امام صاحب نے نکاح پڑھایا، امام صاحب سے کہا تم بتاؤ. امام صاحب بولے 10,000. جب اتنا کہا 10,000، اب ان کو کوئی پیسے نہیں دے گا. سن لو مذاق مت لو. اب امام صاحب بولے 10,000. بس اب دولہا میاں کے ابا کو بھی بخار آ گیا. وہ بڈھن جو یہ کہہ رہے تھے حق تھا وہ بھی گئے، سب گرم. امام صاحب کا دماغ خراب ہے، 10,000 کے ہی چلنا ہے، ہٹاؤ ان کو، مسجد سے نکالو. کون ہے متولی؟ بلاؤ. صدر صاحب کو بلاؤ. اب صدر صاحب کو بلایا گیا. کوئی بات نہیں، کرنے دو، کرنے میں اتنا بیٹھو. صدر صاحب کو بلایا گیا. جیسے ہی صدر صاحب آئے بولے کیا بات ہے؟ یہ بھی گردن نیچو کر کے بولے امام صاحب تم چلے جاؤ، ہم دوسرا انتظام کر لیں گے، تیری صدارت ناپ دی جائے گی. دیکھ شرم کرو، غیرت کرو. تم نے آتش بازی میں 10,000 اڑا دیے، چوروں کو دے دیے، ڈکیتوں کو دے دیے، تالی بجانے والوں کو دے دیے، مالا پلانے والوں کو دے دیے، کسے نہیں دیے، دوپٹہ سر پہ رکھا دے دیے. لیکن جو امام نکاح پڑھا رہا ہے اس پہ دینے میں تمہیں موت آ رہی ہے. امام کو مسجد سے نکلوا دیا جاتا ہے. کب تک نکلواتے رہو گے؟ مجھے بتاؤ کون اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ اگر یہی معاملہ رہا کون بچوں کو پڑھوائے گا؟ 8-10 ہزار روپے کی تنخواہ میں کون اپنے بچوں کو برباد کرے گا؟ مجھے بتاؤ. سوچو. کچھ بھی نہیں سیکھا، وہ کوئی کام نہیں سیکھا، خالق کو بڈا. اس کے بعد اب آتا ہے کمائی کا نمبر. 500 روپے کی مزدوری، 1 مہینے میں 15,000 روپے. شام کو بیوی بچوں میں سوتا ہے. اس نے حفظ کرنے کے بعد، مولوی بننے کے بعد اتنا برا کر لیا کہ تم مسجد میں سے 8-10 ہزار میں ہی ناپے پڑے ہو. بولو 8-10. اسی وجہ سے لوگوں نے پڑھانا چھوڑ دیا. حضرت لوگوں نے پڑھانا چھوڑ دیا. اچھے اچھے عالم اس راستے کو چھوڑ گئے، اپنے کاروبار کو اپنا دیے. یہ صرف تم سے حساب لیا جائے گا، تم سے حساب لیا جائے گا، معاف نہیں کیا جائے گا. سننے کی بات ہے یار، دکھ کی بات ہے نوجوانوں. سارے لوگ جو سستی چیز ہوتی ہے نا وہ نالیوں پہ پڑی ہوتی ہے، جو مہنگی چیز ہوتی ہے وہ تجوری میں رکھی ہوتی ہے. سچائی، چاہے پتھر ہی کیوں نہ ہو، موتی ہی کیوں نہ ہو، ہیرا ہی کیوں نہ ہو، لوہا ہی کیوں نہ ہو. سمجھ رہے میری بات؟ اب خود بتاؤ، اتنے براہی نام ہے جگہ، براہی میں کتنے مالدار ہیں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں؟ مشکل سے 1 کا دکا. کیوں؟ مسلمان نہیں ہے. ہاں مدرسے کی بات کر رہے ہو، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا انہیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے؟ انہیں دین اسلام کی ضرورت نہیں؟ غریب کا بچہ پڑھ کے اگر امام بنتا ہے نا، ایک تو 8-10 ہزار روپے کی تنخواہ. اب اگر مالدار کا بیٹا نا کسی کی لڑکی کو چھیڑ رہا اور اس نے امام جو ہے نا غریب کا بچہ، اس نے کہا اے غلط کام ہے، بس جتنے لفنگے ہوں گے نا سب اس مالدار کے اس میں ہوں گے، کہیں گے امام ٹھیک نہیں ہے، امام کو نکالو. کوئی اس کا حقہ پانی نہیں بند کرتا، امام کو نکلوا دیں گے. ایک آدھ غریب بیچارہ امام کے ساتھ ہوگا، مالدار. کب تک؟ یہی تو چلا لو گے حشر کے میدان میں. سنتے ہیں کہ محشر میں
सुभान सिर्फ अल्लाह। उनकी रसाई होगी। उनकी रसाई है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ रहे? कहाँ वहां पर किसकी चलेगी? आका की चलेगी। कैसे फैसला करोगे? कैसे है हिम्मत? इसलिए तुम्हें कह करके जाऊंगा प्यारो, इमामों की अगर तनख्वाह, हजरत देखो सबके बीवी बच्चे, सही। अगर तनख्वाह कम होती है ना, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत, अगर तनख्वाह कम होती है ना तो उसकी नीयत इधर उधर बहकती है। अरे बीवी बीमार है, बच्चे बीमार हैं, हर एक के माँ बाप ये चाहते मैं अपने बच्चे की कमाई थोड़ी मोड़ी खाऊं। बोलो चाहते नहीं चाहते? इसने कुरान पढ़ के हाफिज होकर इतना बुरा कर लिया, इतना गुनाह कर लिया कि तुम अब इसके गले में रस्सी डाल के मारने के चक्कर में हो। ऐसे हालात याद रखना, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी आखिरत में, माफी नहीं मिल सकती। अल्लाह बरकत में सुनो ये बात सुनने की। अब फिर वो क्या करता है? वो शमा शमिस्तान रज़ा, मजमूआ अमाल रज़ा लाया, वो तावीज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने। कहीं से तो कमाए गई। अब नियत बन रही है बराही में और टेलिया मुरादाबाद में। पढ़ो नमाज भाई जी। जो अच्छे अच्छे लोग थे, एक मुफ्ती बढ़ेगा, एक वो पढ़ेगा, अच्छा कारी बढ़ेगा। ये रिवायत है हफ्स फारिग कारी, समझे? वो पढ़ेगा सही करके तो वो 6000 में 8000 में कैसे रहेगा तुम्हारे यहाँ? समझ रहे? और तुम्हें इतने में ही रखना। अब वो तुम्हें वो ही मिलेंगे जो नाकारा है, जो बेकार से पढ़े। एक जगह हम गए तो बोले मुस्तकीम, अल्लाह नमाज ही खत्म, खलास। कहाँ ले आया खींच को से, और सदर साहब झूम रहे हैं। क्या प्यारा लहजा आता है। सदर साहब को खुद पता नहीं है, उन्हें क्या पता? हाँ, उन्हें ऐसे ऐसे मौल साहब तकरीर कर रहे थे, बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया। सदर साहब नीचे से बोले सुभान अल्लाह। इसे सदर रहने की इसका हक है क्या? पूरा गदर मचा के रख दिया। होश में आओ। कपड़े देख के लाते हो, जूते देख के लाते हो, सारी चीजें देख के लाते हो, और जब बारी आती है कुर्बानी के बकरे की तो मरा खुरा ऐसे चल रहा यूं, और मोहल्ले में ओड़ी पड़ी, बोला कुर्बानी हो रही साहब, कुर्बानी। 3500 की बकरी खरीदी है, बकरी। शर्म नहीं आई? हार डाले फिर रहे मोहल्ले में उसके, और इमाम आएगा आलूओं में डालने वाला, जिसके पीछे नमाज ही नहीं हो रही। ऐसे हालात, अच्छा इमाम लाओ, पैसे भी अच्छे दो। मैं तरीका तुम्हें बता दूं, आसान सा तरीका, और मेरी गुफ्तगू खत्म। फिर बच्चों की दस्तार होगी आसान। और ये गांठ बांध लियो, बच्चियों को अगर फैशन से और इन तमाम चीज़ों से बचाना है तो 4-5 घंटे जो मदरसे में मिल रहे हैं, बच्ची को वहाँ छोड़ो, बच्ची को वहाँ छोड़ो। वो तरबियत अगर 1-2 साल पालेगी तो इंशाअल्लाह उसकी नसों से वो तरबियत कोई निकाल नहीं सकता है। बेशक बेशक बेशक। समझ रहे? अब सुनो, बिल्कुल आसान तरीका। तुम्हारे यहाँ मस्जिद तो होगी, और जुमे के दिन हर मस्जिद में कम से कम 100 नमाजी आते हैं। आते नहीं आते? तो तुम्हें क्या करना, हर जुमे को बस 50 रुपए डालना गुल्लक में। कितने डालना? 50 रुपए। 100 नमाजियों के कितने हो गए 50 के एतबार से? 5000 एक जुमे में। और एक महीने में कितने जुमे होते हैं? और 5 और 4 दोनों होते हैं, 5 भी होते हैं 4 भी होते हैं। 20,000 हो गए। तुम्हारे कितने का? 200 रुपए एक महीने में। एक हफ्ते में तुम्हारे बच्चे ना 50 रुपए की चीज खा जाते हैं। तुम पान या बीड़ी सिगरेट पी जाते होगे। तुम्हारे बच्चे मोबाइल में उड़ा देते हैं एक महीने में 500-700 रुपए। तो तुम अल्लाह के नाम पर दीन के काम के लिए 50 रुपए एक हफ्ते में खर्च नहीं कर सकते हो? ये मेरी बात लिख लियो, किताबों में नहीं मिलती है, सीनों से मिलती है। अगर तुमने ऐसी नियत कर ली, जाओ अपना करके देखो। जिस साल अगर तुम मस्जिद में डालना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे बच्चे डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएंगे।
बीमारियों और आफतों से ऐसी नागहानी बीमारी से बच जाओगे जिसमें 10,000 रुपए अचानक में उड़ जाते हैं। करके तो देखो, तुम आजमा करके तो देखो, मगर लोग करते नहीं, समझ रहे। और हाँ, एक बात और बता रहा हूं, बाज जगह कमेटी को अगर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो कमेटी इतनी कंजूस होती है, इमाम की तनख्वाह वही 8-10 और खुद जमा कर करके इकट्ठे करके बाज तो कमेटी वाले ही खा गए। और बाज जगह बेईमानी कर ली और बाज जगह कारोबार चल रहा, नहीं जिनका हक है उन्हें दो। तनख्वाह इमामों की, आलिमों की बढ़ाओगे तो सारे बच्चे पढ़ने के लिए आ जाएंगे। बोलो ये काम करोगे? बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और आपस में मेल, मोहब्बत, प्यार, सारी बुराई निकाल दो यार। किसी से मत जलन, हसद, कीना कुछ नहीं, बहुत प्यारे हो जाओ, एक दूसरे की मदद करो। बोलो करोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इसमें जो भी गलती हुई हो मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े।